अगर आपने रिसेंटली अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया है या स्टार्ट करने का प्लान है तो हो सकता है कि इस थॉट प्रोसेस के विक्टिम आप भी हो। Alright, that is it for this video. Do subscribe to my channel and I'll see you next time. Bye. Got only 100 subscribers. Tomorrow's gonna be better. Oh my god, we just reached 1 million subscribers. Thank you so much everyone. Thank you so much for the support. Oh come on. Yes, it is 100% true क्योंकि except in a few exceptional cases जो growth YouTube पे आप देखेंगे वो ऐसी होगी और ज़रूरी नहीं है कि कोई एक वीडियो वायरल हो जाए and everything might just work out for you. Hi, this is Visha and welcome to a super special video क्योंकि इसमें मैं शेयर करने वाली हूँ अपनी YouTube की कहानी और एक टाइमलाइन कि कब से कब तक कितना टाइम मुझे लगा from 0 to 1000 subscribers to 1000 to 10,000 and 10,000 to 20,000 subscribers. So I'm going to break down that journey for you and tell you all that I've learned in different time frames and also hopefully give you a message in the end. So please do stick till the end. अगर आपको लग रहा है कि आपके YouTube चैनल पे enough views, enough subscribers नहीं आ रहे हैं तो this video is something that you really need to watch. तो recently मुझे काफ़ी लोग congratulate करने लगे कि wow Visha, you have achieved 20,000 subscribers on YouTube in such a short period of time. But let me tell you, it was honestly not a short period of time. मुझे पूरे 2 साल लग गए इसको अचीव करने में and now in no way am I saying कि आपको भी उतना ही टाइम लगेगा। हो सकता है आपकी कम टाइम में इससे भी ज़्यादा ग्रोथ हो जाए या आपको इससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाए। That depends on a lot of factors जिसकी बात हम इस वीडियो में करते रहेंगे। तो इस कहानी की शुरुआत होती है जनवरी 2019 में जब मैं अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की जॉब भी कर रही थी and I wanted to start something on the side which is a little more creative and उस टाइम पे मैं काफ़ी ट्रैवल कर रही थी तो I thought why not start a YouTube channel where I will share some budget friendly travel itineraries क्योंकि that was my style, that has been my style of travel always. So I learned the process of editing, of capturing a little bit and I started making videos and January 2019 में मैंने अपना first video release किया. So of course I started with 0 subscribers in January and then a lot of travel happened. मैं काफ़ी ज़्यादा mountains पे जाने लगी because that was close to Delhi and I could only use my extended weekends or normal weekends and ये सब करते करते I absolutely fell in love with the process of video making, editing, just documenting my experiences, just putting it out on YouTube. And I still remember कि हमारे डिपार्टमेंट की प्रमोशन पार्टी थी एक वीकेंड पे and there were a couple of times जब ऐसी कुछ पार्टीज हुआ करती थी and I used to deliberately miss them and I used to actually look forward to coming home on weekends and working on those videos and pushing them out on YouTube. तो you know जब मैं CA कर रही थी, जब मैं CA स्टूडेंट थी तब भी काफ़ी बार मुझे लगता था कि शायद आगे जाके दिस इज़ नॉट व्हाट आई want to do, this is not my cup of tea probably. तो मैं कुछ ना कुछ थोड़ा सा और क्रिएटिव शायद करना चाहूँगी but I was not able to figure out what. तो अब जाके उस टाइम पे मुझे एक्चुअली शायद थोड़ी क्लैरिटी मिलने लगी कि ओके मे बी दिस इज़ माई कॉलिंग, मे बी दिस इज़ what I really want to do. So I thought that it was the right thing to push all my energies and all my spare time into this. And ये करते करते काफ़ी सारे videos मैंने upload किए YouTube पे and फाइनली जाकर एक टिपिंग पॉइंट आया, एक पॉइंट ऐसा आया जब मुझसे दोनों चीज़ें हैंडल नहीं हो रही थी बिकॉज माई जॉब वॉज ऑल्सो प्रीटी डिमांडिंग एंड जॉब भी और यूट्यूब भी सब आई थॉट दैट आई वॉजंट एबल टू डू जस्टिस टू बोथ ऑफ देम. तो उस टाइम मैंने सोचा कि शायद मुझे यूट्यूब फुल टाइम थोड़े टाइम करके देख लेना चाहिए एंड आई गेव माई सेल्फ टाइम पीरियड ऑफ 1.5 years कि मैं उस 1.5 years में जज करूँगी और एनालाइज करूँगी कि मेरा इंटरेस्ट इस फील्ड में कितना है एक्चुअली में, जितना मुझे लगता है क्या वो है या नहीं, और मेरी ग्रोथ कितनी हो पाती है इस टाइम पीरियड में. सो फाइनली मैंने डिसीजन लिया टू क्विट माई जॉब एंड सितंबर 2019 में जाकर मैंने अपनी जॉब क्विट की एंड स्टार्टेड डूइंग यूट्यूब फुल टाइम. एंड जाहिर सी बात है उसके बाद काफ़ी सारा फुल टाइम ट्रैवल होने लगा क्योंकि आई डिड नॉट हैव टू फाइट फॉर माई लीव्स एनी मोर. सो महाराष्ट्र, गोवा, आई टुक माई फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप टू भूटान, लॉट ऑफ अदर ट्रैवल्स एंड नवंबर में फाइनली जाकर मैंने अचीव किए 4000 आवर्स ऑफ वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर्स का मार्क. एंड ऑल्सो सम होप इन मी क्योंकि यू नो कैसे हमें बचपन से बताते हैं कि बस बेटा 10th क्लास में अच्छे मार्क्स ले आओ, लाइफ सॉर्टेड है, 12th में बस अच्छे मार्क्स ले आओ, लाइफ सॉर्टेड है, एंड
it never really ends. So I thought 1000 सब्सक्राइबर्स मार्क अटेन करना मेरे लिए 10th में अच्छे मार्क्स लाने जितना था कि ओके शायद अब YouTube लाइफ सॉर्टेड होने वाली है, एक लेवल तक हमने कुछ अचीव कर लिया है. बट एंड दिस इज़ नॉट टू स्केयर यू बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप जितना ही अटेन कर लो, कितने ही सब्सक्राइबर्स अचीव कर लो, इवन इफ इट्स लाइक 1 million, you will always just keep wanting for more numbers, and that's just a natural instinct that we all have, so that's completely okay. So anyway, I still remember कि मैं मुंबई से पुणे जा रही थी बस में, and I also met the famous stand-up comedian Rahul Dua, and I was having a conversation with him, which is when I hit that 1000 subscriber का mark, and I was very very happy in the moment. तो अगर मैं देखूँ जनवरी से नवंबर, लाइक ऑलमोस्ट एन इंटायर ईयर मुझे लग गया 1000 अचीव करने में. एंड ऑफ कोर्स देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स विच कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द डिले ऑफ इट, इफ़ यू वुड कॉल इट सो. जैसे कि मैं अपनी साथ साथ में जॉब कर रही थी, तो जनवरी से लेकर नवंबर तक मेरे चैनल पे गए थे सिर्फ और सिर्फ 12 वीडियोज़, तो जिसका एवरेज आता है 1 वीडियो अ मंथ, विच इन माई ओपिनियन इज़ प्रिटी बैड. आई मीन एटलीस्ट यूट्यूब पे 1 वीडियो अ वीक की फ्रीक्वेंसी तो होनी चाहिए इफ़ यू वांट टू डू इट सीरियसली. सो क्योंकि वीडियोस काफ़ी कम थे, क्योंकि उस टाइम पे मैं बहुत चीज़ें नई सीख रही थी, विच इज़ ऑल्सो रीज़न की कंसिस्टेंसी नहीं थी. सो इट टुक मी लाइक एन ऑलमोस्ट एन एंटायर ईयर टू रीच द फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर्स. बट क्योंकि अब मैं अपनी जॉब छोड़ चुकी थी एंड आई वांटेड टू बी मोर कंसिस्टेंट, तो नवंबर के बाद अगेन आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग टू अ कपल ऑफ प्लेसेस, जयपुर, रन ऑफ कच्छ, एंड फाइनली मार्च 2020 में जाके जब मेरा प्लान था कि अच्छे से साउथ इंडिया पे एक ट्रैवल सीरीज़ बनाई जाए, तब हो गया लॉकडाउन पार्ट 1 एंड आई वॉज इन बैंगलोर बैक देन. तो ट्रैवल कंटेंट बनाना भी बंद हो गया और ट्रैवल कंटेंट कंज्यूम होना भी बंद हो गया यूट्यूब पे. तो my channel, I saw some decline in the statistics on my channel, and that's when I decided to diversify into some type of content जो उस टाइम पे लोग देख रहे थे. तो मैंने sit down videos बनाने शुरू किए, मैंने अपनी जर्नी शेयर करनी शुरू की, and I started making video making tutorials, and oh my god, you guys seem to love those kind of videos, and I loved creating them. So I thought, wow, I just found another niche for my channel, and so I started making more videos on that. तो लास्ट व्लॉग एंड उसके बाद इवेंचुअली ये सब करते करते मैंने अपनी वर्कशॉप्स भी शुरू की ऑन व्लॉगिंग, एंड आई कुड ट्रेन ओवर 100 कंटेंट क्रिएटर्स इन अ स्पैन ऑफ 5 वर्कशॉप्स स्प्रेड अक्रॉस वेरियस लाइक अ कपल ऑफ मंथ्स. तो चीज़ें थिंग्स वर स्टिल लुकिंग गुड, ठीक था, सब कुछ सही चल रहा था. एंड फाइनली ये सब करते करते अक्टूबर 2020 में मैंने अचीव किया 10,000 सब्सक्राइबर्स का मार्क. एंड सो आप देख सकते हो कि इट एक्चुअली टुक मी फ्रॉम नवंबर 2019 टू अक्टूबर 2020, लाइक इट टुक मी 11 months टू कंप्लीट 10,000 सब्सक्राइबर्स. तो 1000 करने में भी मुझे 11 months लगे एंड 10,000 करने में भी मुझे 11 months लगे. तो इसको हम बोलते हैं स्नोबॉल इफेक्ट, कि आपके स्टार्टिंग के फ्यू सब्सक्राइबर्स गेन करने में आपको जितना टाइम लगेगा उससे काफ़ी कम टाइम आपको नेक्स्ट फ्यू सब्सक्राइबर्स गेन करने में लगेगा. नाउ हियर वन मोर थिंग हैज़ टू बी नोटेड कि अब मैं बनाने लगी वीडियोस और भी ज़्यादा कंसिस्टेंटली. तो नवंबर और अक्टूबर के बीच मैंने रिलीज़ किया अपने चैनल पे कुछ अराउंड 35 वीडियोज़, जिसका एवरेज आता है approximately 3 videos a month, which was a pretty good improvement from 1 video a month. And October 2020 में cherry on the cake was the fact कि travel started opening up, and उस time मैंने लिया एक strategic decision कि I should go to a place which is getting a lot of searches on YouTube. And हमें पता है उस time पे सबसे ज़्यादा इनफैक्ट आधी जनता गोवा में थी और आधी मनाली में. And since I am a mountain person and I love mountains, so मैंने सोचा मनाली जाना will be the right thing to do at that time. And honestly it worked like magic, क्योंकि मैं मनाली गई, मैंने डेली वीडियोस वहाँ से बनाया. I was also happy that it was a work project, it was a collaboration. In fact, it was my first collaboration on YouTube. I went to Manali, I made daily videos, I made a lot of good quality videos, क्योंकि मेरे पास मेरा नया कैमरा Sony A7 III भी आ चुका था तब तक, and I had learned a bunch of things about that camera. So I could utilize all that knowledge that I had gained sitting in lockdown, and I could create some really good videos. I am
really proud. In fact, Manali series is like the most loved series on my channel. And उन सब चीज़ों का रिजल्ट मैंने देखा जनवरी में, जब मेरे चैनल ने हिट किए 20,000 सब्सक्राइबर्स. सो नवंबर से लेकर जनवरी तक, नवंबर और दिसंबर में मैंने जो वीडियोस इतने सारे बनाए, उन सब का रिजल्ट मुझे जनवरी में दिखा. व्हेन पीपल स्टार्टेड ट्रैवलिंग आउट मोर, और लोग काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल एंड मनाली सर्च कर रहे थे. न्यू ईयर था, पीपल वांटेड टू जस्ट गो अहेड एंड ट्रैवल. सो उस टाइम पे आई सॉ दैट ग्रोथ. एंड यहाँ पे वन मोर थिंग दैट हैज़ टू बी नोटेड इज़ दैट अक्टूबर 2020 से जनवरी 2021 के बीच मैंने बनाए 25 वीडियोज़ इन टोटल, विच कम्स आउट टू बी on an average 6 videos a month. तो 1 video a month से 3 videos a month से finally 6 videos a month, quite an improvement. Every piece of content that I was making had a certain quality, so I never compromise on quality, चाहे quantity कितनी ही हो. And that gave me results in January, so I was pretty happy कि January 2019 से January 2021 2 साल में मैंने achieve किए 20,000 subscribers. Now I know it isn't like that great a number, a very big number, but it's still a good start. It still gives me encouragement. And January 2021 में मैंने वो 1.5 years का period भी पूरा किया जो मैंने खुद के लिए दिया था. And now I think I'm pretty sure that I want to do this going forward, and I do want to continue doing this. And I've questioned myself so many times कि क्या मैं सही direction में जा रही हूँ, and I've gotten into that self-doubt वाला loop, but it has always been a phase and it has always passed away. That's all I can say. That rhymes. सो आई होप दैट इस वीडियो के और अपनी जर्नी शेयर करने के थ्रू मैं मैसेज कन्वे कर पाई हूँ आपको कि गुड थिंग्स टेक टाइम. एंड चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे कोई स्टार्टअप, चाहे कुछ भी आप कर रहे हो, थिंग्स विल टेक टाइम एंड यू हैव गॉट टू हैव पेशेंस. एंड रिमेंबर दैट स्लो ग्रोथ इज़ ऑल्सो ग्रोथ. अगर थोड़े से भी व्यूज़, कस्टमर्स, सब्सक्राइबर्स आपके पास आ रहे हैं तो दैट ऑल्सो शोज दैट यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. प्लीज डोंट बी टू हार्ड ऑन योर सेल्फ, स्पेशली इन द करेंट टाइम. अप्रिशिएट योर सेल्फ एंड यू हैव डन समथिंग गुड. कीप राइटिंग योर स्टोरी सो दैट यू कैन इंस्पायर अदर कॉन्टेंट क्रिएटर्स. एंड विद दैट आई विल एंड दिस वीडियो. Please do give it a thumbs up if you found anything to take away, because it will help me a lot in the YouTube algorithm. And I'll catch you in the next one. Bye.